Hello, dear friends. What's up? Hope you are doing well. This is your host Wafa Ejaz, and today in this video, I would like to talk about a very famous poem from class 12th English, Punishment in Kindergarten, which is written by Kamala Das. So before I proceed, let me tell you, if you have not subscribed my channel yet, just subscribe it and don't forget to press the bell icon. So before I come to text, let me tell you something about the poem. My dear, in the poem Punishment in Kindergarten, Kamala Das memorizes a childhood experience that was quite painful for her. She was scolded by her teacher for being alone, and her schoolmates also laughed at her. That made her weep. My dear, this poem has been divided into three parts. In the first part, the poet discusses how her teacher scolded her. In the second part, she memorizes her schoolmates laughing her, making her weep. And in the final part, she says that being an adult, there is no need for her to memorize the experience. Before I discuss each stanza in detail, let me tell you some basic facts about the poem. In the first stanza, the poetess is talking about her encounter with her teacher. As we can see here, just wait. Today the world is a little more my own. As you can see from here, the poet begins with the line, today the world is a little more my own. So that makes it clear that she is going to talk about a past event that was not pleasant for her. So next, she begins by narrating the day in her childhood in kindergarten when she went to a picnic along with other students. तो इसके साथ साथ मैं ये भी आपको बताता चलूँ कि द पोएट यूज एम्पल ऑफ सिंबल्स लाइक अ बिल्लू फ्रॉक्ड वुमन. आप यहाँ बिल्कुल देख सकते हो. शी इज यूजिंग a billy frocked woman here, a billy frocked woman, and she has used this for her teacher. उसके बाद यहाँ भी आप देख सकते हो, throwing words at me like pots and pans. Pots and pans means to make us feel that she has used this throwing words at me like pots and pans to make us feel the intensity of teacher's words. उसके बाद उसने ये भी इस्तेमाल किया है that honey colored day of peace, honey colored for the day which was ruined by the harsh words of her teacher. तो उसके बाद जब हम दूसरे स्टेंजा की ओर मूव हो रहे हैं तो वी सी लाफिंग ऑफ स्टूडेंट्स देयर. वहाँ ये बात करती है कि कैसे उसके स्टूडेंट्स जो उसके क्लासमेट्स थे वो उस पे हंसे. सो इन द सेकेंड पार्ट द पोएट सेज व्हेन द टीचर स्कॉल्डेड हर, अदर स्टूडेंट्स हु वर सिपिंग शुगर केन्स, आप यहाँ बिल्कुल देख सकते हो. On the lawn in cluster sat my schoolmates sipping sugar canes. तो वो कहना क्या चाहती है कि when the teacher scolded her, other students who were sipping sugar canes started laughing at her. The children, according to Kamala Das, are funny creatures. They laugh at others' pains, and they did the same when Kamala Das was scolded without realizing how much she was hurt. तो जब हम इससे के आगे भी बढ़ते हैं तो लास्ट स्टेंजा में वो अपने आप को फिर एक बार कहती है कि अब मैं अडल्ट हूँ और मुझे पीस है, यानी अब मुझे उस
इवेंट को याद नहीं दिलाना चाहिए. सो द poet says that now she is grown up. The memory of that event has faded away because there is nothing in her childhood to cherish and desire for. She has now found adult peace. लेकिन याद रखिएगा, जब वो कहती है कि अब मुझे पीस है, मैं अब अडल्ट हूँ, आप यहाँ देख सकते हो, माई माइंड हैज़ फाउंड एन अडल्ट पीस. My mind has found adult peace. So ironically, by saying again and again, no need to remember, her helplessness in forgetting, it's quite visible. The memory has not faded away, but quite clear in her mind, as she remembers very well everything of that day. तो अब टेक्स्ट की ओर चलते हैं. I hope that you might have understood the gist of this poem. हाँ, तो the poet says, today the world is a little more my own. तो याद रखिएगा, ये जो इसने इस्तेमाल किया है, today the world is a little more my own, असल में ये इसलिए इसको इस्तेमाल किया गया. इट मीन्स दैट द पोइटेस इज नाउ ए ग्रोन अप पर्सन. शी हैज पीस एंड कॉन्फिडेंस. शी फील्स हर सेल्फ टू बी द मिस्ट्रेस ऑफ हर ओन वर्ल्ड. क्योंकि अभी मैंने इसमें कहा कि इस पोएम में शायरा एक उस इवेंट के बारे में बात कर रही है जो उसके साथ तब हुआ व्हेन शी वाज स्टडीइंग इन किंडरगार्टन. तो अब इतनी बड़ी होके वो कहती है कि आज की दुनिया जो है वो मेरी मुट्ठी में है. मैं अपनी दुनिया की मलिका खुद हूँ. मैं अपनी दुनिया की रानी खुद हूँ. मुझे अब पीस है, मुझे अब कॉन्फिडेंस है. आई नो व्हाट्स गुड एंड व्हाट्स बैड फॉर मी. तो ये आज की बात कर रही है. और नाउ व्हेन शी इज ग्रोन अप, व्हेन शी इज अडल्ट, शी हैज पीस एंड कॉन्फिडेंस. इन चीज़ों को जहन में रखने के बाद वो कहती है, नो नीड टू रिमेंबर द पेन. अरे ओ कमला दास, आपको दुख को, दर्द को अब याद करने की जरूरत नहीं है. नो नीड टू रिमेंबर द पेन. आपको उस दुख और दर्द को याद करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आप कॉन्फिडेंट हो, अब आपको पीस है, आपकी जिंदगी अच्छी तरह से चल रही है. लेकिन जब हम कमला दास से पूछते हैं कि कमला दास, आप किस इवेंट के बारे में बात कर रही है, आप ये क्यों कहती है नो नीड टू रिमेंबर द पेन, जरा ये पेन क्या थी इसके बारे में हमें वाकिफ कराए. वो कहती है, अ ब्लू फ्रॉक्ड वुमन कॉज्ड. तो याद रखिएगा, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, अ ब्लू फ्रॉक्ड वुमन कहती है. सो ब्लू फ्रॉक्ड वुमन जो है, इट्स हर टीचर इन ब्लू फ्रॉक. असल में ब्लू फ्रॉक्ड वुमन जब भी आप इसमें पढ़े तो यहाँ ये रेफर करता है कमला दास के टीचर को. शी वॉज अ लेडी, दैट्स व्हाट शी हैज मेंशन्ड हियर, अ ब्लू फ्रॉक्ड वुमन. तो कमला दास, ये दर्द, ये दुख आपको किसने दिया था? अ ब्लू फ्रॉक्ड वुमन ने, यानी उसके टीचर ने, जिसने ब्लू फ्रॉक पहना था. एक्चुअली यहाँ इसने विजुअल इमेजरी का सहारा लिया है. ये कमला दास हमारे जहन में एक इमेज क्रिएट कर रही है कि वो मेरी टीचर कैसे दिख रही थी, उसके कपड़े कैसे थे उस समय जब उसने मुझे डांटा है. तो उसने क्या कहा आपको, कैसे इंसल्ट किया आपकी? throwing words at me like pots and pans. तो इसका मतलब है स्पीकिंग वेरी हार्शली, यानी वो झपट पड़ी मुझ पे. इस अंदाज से उसने मुझ पे वो अल्फाज का इस्तेमाल किया है. यानी साउंड इमेजरी आप देखिए कैसे इसने इस्तेमाल किया. जहाँ मुझे इतना टाइम नहीं है कि मैं विजुअल इमेजरी, साउंड इमेजरी, टेस्ट इमेजरी को इंडिविजुअली एक्सप्लेन कर सकूं, लेकिन यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन. यू ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन माय डियर. तो ब्लू फ्रॉक्ड वुमन caused throwing words at me like pots and pans. यानी she spoke to me very harshly.
और उससे आपको क्या हुआ? टू ड्रेन मीन्स टेक अवे द charm, टू ड्रेन दैट हनी कलर्ड डे ऑफ पीस। तो शायरा कहती है वो हनी कलर्ड डे जो मेरे लिए था, वो पिकनिक का डे जो खुशी का दिन मेरे लिए था, उस दिन की खुशी ही उसने मुझसे छीन ली इंसल्ट करने के बाद। लेकिन मैं चाहता हूं कि कमला दास से ये भी पूछूं, अच्छा आप बार बार कहती हो कि उसने मेरी इंसल्ट की, जरा ये भी तो बताइए कि उन इंसल्ट में उसने क्या कहा आपको? तो बिली फ्रॉक वुमन ने क्या कहा? वाई डोंट यू जॉइन अदर्स, व्हाट अ peculiar child you are. So peculiar means strange, अजीबोगरीब। असल में बिली फ्रॉक्ड वुमन ने शायरा को क्या कहा, कमला दास को क्या कहा? when she was a child, why don't you join the others, what a peculiar child you are. अरे ओ कमला दास, आप बाकी बच्चों के साथ क्यों नहीं मिल रही? यानी असल में ये आप समझ जाइए कि उस पिकनिक वाले दिन पर कमला दास एक साइड में बैठी थी और उसकी जो जितने भी बाकी रेस्ट ऑफ द क्लासमेट्स थे वो एक साइड में बैठे थे। तो जब कमला दास के टीचर बिली फ्रॉक्ड वुमन ने कमला दास को अकेले में देखा तो वो वहां उसके पास चलकर ये कह गई, व्हाई डोंट यू जॉइन द अदर्स, व्हाट अ पेक्यूलियर चाइल्ड यू आर। अरे ओ कमला दास, आप बाकी बच्चों को क्यों ज्वाइन नहीं कर रही? आप कितने अजीब गरीब बच्चे हो। तो जब कमला दास को बिली फ्रॉक वुमन ये कह गई तो उसके बाद क्या कहती है? ऑन द लॉन इन क्लस्टर्स सैट माई स्कूल मेट्स सिपिंग शुगर केन्स। तो एक मैदान में, तो एक घास के मैदान में जहां पर कमला दास के बाकी स्कूल मेट्स जो थे who were sipping sugar canes, उन्होंने जब ये इंसल्ट सुन ली, they turned and laughed, वो मुड़ गए कमला दास की ओर और उस पर हंसे। यानी उन्होंने ये तो देखा, उन्होंने ये तो सुना कि कमला दास की इंसल्ट हो रही है, लेकिन उसके बावजूद वो थोड़े खामोश रहने चाहिए, लेकिन ये देखने के बाद they turned and laughed। इसीलिए कमला दास कहती है कि children are funny things, children are funny। वो funny things क्यों है? क्योंकि they laugh in mirth at others' tears। उन बेचारों को पता ही नहीं होता कि अगर कोई रो रहा है वो उसके रोने पर भी हंसते हैं। उनको पता ही नहीं है, बच्चों बेचारों को पता ही नहीं होता कि हमें हंसना कब चाहिए और रोना कब चाहिए। जब वो किसी को रोते हुए भी देखते हैं तो तब भी वो उस पर मुस्कुराते हैं। लेकिन जब कमला दास ने ये देखा कि एक तो मेरी इंसल्ट हुई है और दूसरी तरफ मेरे स्कूल मेट्स मुझ पर ही उल्टे हंस रहे हैं, तो उसने क्या किया? I buried my face in the sun-warmed hedge and smelt the flowers and the pain. You see, the poet recalls a painful experience of her childhood. Though it was a fine picnic day, but she was rebuked by her teacher. Her classmates laughed at her, and this added to her pain. This makes the poets make a general remark about the children. They are funny creatures. क्योंकि they laugh joyfully at the pain and sufferings of others. So the poetess recalls how the teacher rebuked her and told her to mix up with her classmates, but she was deeply pained when other classmates laughed at her. Her classmates sat at that time in a group on the lawn. They were sipping sugar canes. They laughed to see her being rebuked, but she did not join them. She sat by the side of a hedge. She smelled the sweet fragrance of hedge flowers through her heart, though her heart was full of pain. यानी उसने अपने चेहरे को छुपाया उन झाड़ियों में और वो अपने उस दर्द को महसूस कर रही थी। लेकिन अब चूंकि ज़माना तो बहुत गुजर चुका है, अब कमला दास खुद कहती है The words are muffled now, the laughing face is only a blur. The years have sped along, stopping briefly
at beloved halts and moving. So muffled means dim, यानी अब वो धुंधले हो गए. द वर्ड्स आर मफलड नाउ, यानी जिन अल्फाज के बारे में कमला दास बात कर रही है वो अल्फाज कौन थे? वाई डोंट यू जॉइन अदर्स, व्हाट ए पिक्यूलियर चाइल्ड यू आर. तो अब कमला दास इन अल्फाज को अच्छी तरह याद नहीं कर पाती, अब वो डिम हो चुके हैं. और वो लाफिंग फेसेस मुराद वो चेहरे जो उन बच्चों के थे जो मुस्कुराए, जो हंसे उस समय कमला दास पर जब उसको टीचर ने डांट पिलाई. तो शायरा अब क्या कहती है कि द childhood experience that she records in the poem happened long ago. The harsh words of the teacher have now become faint in her memory. She does not even well remember the faces of the classmates who laughed at her in her misery. So the poetess says that the time has gone by fast since that incident happened in her childhood. She is now adult and has peace in her life. However, she remembers a very few happy and important events of her past. So देखिए कि कैसे वो अब कहती है कि मैं उन वर्ड्स को अच्छी तरह से याद नहीं कर पाती, मैं उन लाफिंग फेसेस को अब अच्छी तरह से याद नहीं कर पाती क्योंकि ज़माना तो बहुत गुजर चुका है. और फाइनली वो क्या कहती है? My mind has found an adult peace. No need to remember that picnic day when I lay hidden by a hedge watching the still white sun standing lonely in the sky. And in these lines, the poetess says that there is no need for her to look back to that picnic day when she was scolded. But she does remember how she lay hidden by a hedge. She kept looking at the bright sun, which appeared as lonely in the sky as she herself felt by the side of the hedge. उस समय वो बिल्कुल उस दुख को याद कर रही और अपने चेहरे को जब उसने छुपाया किसमें? इस स्टील वाइट सन स्टैंडिंग लोनली इन द स्काई. और यहाँ वो कहती है नो नीड टू रिमेंबर दैट पिकनिक डे व्हेन आई ले हिडन बाय अ हेज, जब उसने अपने आप को छुपाया उस झाड़ी में. तो माय डियर, इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूं, दिस वाज ऑल अबाउट द फेमस पोएम पनिशमेंट इन किंडरगार्टन रिटन बाय कमला दास. मैंने इस्तेमाल आपको ये भी बताया कि इसमें वो कुछ इमेज का सहारा लेती है. तो विजुअल इमेजरी की अगर बात की जाए, विजुअल इमेजरी में बी डिफाइंड एज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेंसरी एक्सपीरियंस थ्रू लैंग्वेज. यानी विजुअल इमेजरी इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड इन पोइट्री. ऐसा भी कह सकते हैं एन इमेज में ऑल्सो रिप्रेजेंट अ साइट. यानी अगर इस पोइम की बात करें, विजुअल इमेजरी की बात करें इस पोइम में, तो वी हैव बिल्यू फ्रॉक्ड वुमेन, अगर साउंड इमेजरी की बात करें तो आप देख सकते हैं थ्रोइंग वर्ड्स एट मी लाइक पॉट्स एंड पैन्स. तो अब अगर टेस्ट इमेजरी की बात करें तो यहाँ बिल्कुल देख सकते हैं कि taste of sugar cane, my school mates sipping sugar canes. So my dear, and this was a little bit discussion on punishment in kindergarten. अगर कोई कहीं भी जगह आपको confusion रहा हो तो you do write in the comment box so that I may be in a position to clear your doubts. तो लेकिन अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए. और इसके साथ साथ ये भी आप मुझे बताइए कि मुझे इंग्लिश सब्जेक्ट को जहन में रखते हुए किस किस टॉपिक पर वीडियो बनानी होंगे ताकि मैं मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक पहुंच सकूं. खुदा हाफिज़.